Okay, so we're talking about 17th June. Today, I think we'll have to talk about meiosis. We just started with meiosis, no? Let's start again. Meiosis. Now, meiosis, I told you, is basically happening when the gametes have to be formed. So, meiosis occurs when gametes have to be formed. In sexual reproduction. और कभी भी meiosis नहीं होगा. It produces n number gametes. N number means, suppose it is 2n is 46. If 2n in human cells is 46, तो n number रह जाएगा, n will be equal to 23. So that is what will be the chromosomal number of gametes. तो sperm में, in sperms and eggs, chromosome number will be in a haploid set. ये अगर अभी समझ में नहीं आ रहा है तो मुझे बता देना, because this is the most important thing. Haploid और diploid word आपको 2 साल तक समझ में नहीं आता क्या हो रहा है. In a haploid set, that is n number. So whenever I say it is haploid या n number, इसका मतलब है मैं बोल रही हूँ एक हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम जैसे कि गेमीट्स में होता है, एंड n will be 23. क्योंकि क्रोमोसोम जो है हमेशा 2 सेट में होते हैं, तो जो 46 क्रोमोसोम्स हैं वो 2 सेट में होंगे, 23 plus 23. So when I say that meiosis is occurring, so there will be 23 separating out in 2 different gametes. So in total, from a meiocyte, there will be 4 such gametes will be formed. Meiosis occurs in 2 steps. Occurs in 2 steps. Meiosis 1, ये I think हमने कर लिया था, and meiosis 2. तो जैसे ही meiosis 1 होगा, this will result in 2n को, this will undergo formation of n number के 2 cells. This is meiosis 1, and this is known as the reductional division. Reductional division. And they'll further undergo meiosis 2. Forming n number 4 gametes. These are called gametes. Or we call them as tetrad. Tetrads because they are 4 in number. तो एक meiocyte, इस सेल को नाम देते हैं हम meiocyte cell. Cyte means cell. So this is a meiocyte which is always diploid. This is always diploid. This can never be haploid. And this will be forming some haploid gametes. So this what will be the meiosis. Now क्यों होता है meiosis? ये इसीलिए होता है ताकि जब fertilization होगी तो gametes में अगर chromosome number half है, so एक 2n number will be restored. So let us see why meiosis occurs. Shall I shift to the next slide? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Why meiosis?
एक डिवीजन हमने पढ़ा था माइटोसिस, इसमें सेम नंबर रहता है क्रोमोसोम का, लेकिन यहाँ पे मियोसिस में देखो देयर बी अ रिडक्शनल डिवीजन। इन फैक्ट ये जो सेकंड डिवीजन है दिस इज इक्वेशनल, ये वाला इक्वेशनल डिवीजन होता है। इक्वेशनल मींस अब क्रोमोसोम नंबर का सेट n है तो n ही रहेगा, आगे रिडक्शन नहीं होगा। तो ऐसा क्यों हुआ रिडक्शन डिवीजन, देखें। व्हाई मियोसिस? मियोसिस leads to n number of chromosomes. This is what we say is haploid number. Yeah, there is a haploid set. Hapla means adha. Diploid means double. Now, meiosis leads to n number of chromosomes, which, when fused with other gamete, of other sex, helps in restoring the 2n set. Species. तो जब एक n नंबर का गेमीट, सपोज ये स्पर्म है, this will be fusing with the n number of egg cell, so this will be leading to the formation of a 2n zygote, and this is restoring the chromosome number. This restores parental chromosome number. So that is why this gamete cell is n numbered, so that when they fuse they'll be restoring the chromosome number, otherwise this may become double. Otherwise अगर ऐसा ना हो तो fertilization के बाद this fertilization and these are called the gametes. तो अगर ऐसा ना हो तो फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट के अंदर क्या होगा, क्रोमोसोम का नंबर डबल हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा, एंड दिस विल बी चेंजिंग द स्पीशीज। किसी भी स्पीशीज का क्रोमोसोम नंबर हमेशा सेम रहना चाहिए। अ स्पीशीज always have a specific chromosome number. It should not change. अगर ये ज्यादा हो जाता है so this will be changing the species. तो बहुत जरूरी है कि स्पीशीज के नंबर को, क्रोमोसोम नंबर को सिमिलर रखना है, जैसे कि फॉर होमो सेपियंस, जैसे ह्यूमन बींग्स it is 46. That is what we call as a twin number. तो क्योंकि ह्यूमन बीइंग का 23 into 2 46 है, तो जब ये गेमीट्स फ्यूज होते हैं तो ये 46 नंबर रिस्टोर हो जाता है। आगे माइटोसिस होगा और ये जाइगोट एक ह्यूमन एक ऑर्गेनिज्म में, मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो जाएगा। सो दैट इज व्हाई दिस क्रोमोसोम नंबर हैज टू बी रिस्टोर्ड, और उसको रिस्टोर करने के लिए जरूरी है कि एक हैप्लॉइड प्रोसेस हो और क्रोमोसोम नंबर पहले ही आधा हो जाए ताकि बाद में फिर से ये रिस्टोरेशन हो सके। तो इस तरीके से जो 4 गेमीट्स बनते हैं उन्हीं को हम बोलते हैं टेट्राड। लेट्स सी कि क्या क्या होता है मियोसिस 1 में। लेट्स स्टार्ट विद द प्रोसेस मियोसिस 1। दो कलर के पेन अपने पास रखो। आई नीड 2 colored pens. I'll be using 2 colors here and you will be needing it too. Let's start with the meiosis 1. तो सपोज किसी टेस्टिस के अंदर स्पर्म बनने हैं या ओवरी के अंदर एग बनना है, ओवम बनना है, तो देखो क्या होगा, या अगर पोलन बनना है एक एंथर के अंदर मेल प्लांट्स में, तो मियोसिस 1 में क्या होगा, विल स्टार्ट विद अ सेल जिसमें 2n इज इक्वल टू, हम 4 वाला एक क्रोमोसोम एक सेल लेके चलेंगे जिस फॉर आर इजी स्टडी। तो meiosis 1 is further divided into few sub phases. There are few sub phases
because the whole process is lengthy, तो हम इसको prophase. If I say it is prophase 1, that means I'm talking about meiosis 1. Prophase 1 फिर से बहुत 5 सब phases में होगा. That will be leptoteny, zygoteny, pectiny, diploteny, and diakinesis. Then the second step will be called metaphase. I'll represent it as metaphase 1. Then there will be anaphase. Anaphase 1, and we have the telophase. Telophase 1. Then there will be process of cytokinesis. ये process जो चल रहा है, ये चल रहा है हमारा अभी karyokinesis का. Karyokinesis. That means there is a process of cell division, nuclear division. Karyon means nucleus. लेप्टोटेनी को मैं बोल सकती हूँ लेप्टोनिमा, zygonema, pectinema, diplonema, and dikinesis. इनके मीनिंग देखो क्या है. सपोज इफ आई से लेप्टो, लेप्टो का मतलब होगा थिन रिबन लाइक. Teeny is band. Nema is thread. Zygo means pairing. Pecci means dense. Diplo is 2. And dia means diameter across. Like as in diameter. So this is how the Latin terms will be meaning. Telo means tail. These words you know. Meta means later, telo means tail, cytokinesis means further they're moving about, ana means across. So these were the words that you already know. जैसे कि pro means first, meta means later, ana means up, and cyto means cell, and kinesis means to move away, moving apart. Yeah, for this chapter we'll talk about as cell division. The two cells form and they're moving apart. So that is how the different terms will be meaning in Latin. ये Latin meaning है इन सबके. तो let's start with the first subphase karyokinesis, और उसमें भी पहले हम लेते हैं prophase 1. Let's start with that. Done? Yes, ma'am. Yes, ma'am. याद रखना है आपको, सीक्वेंस भी याद रखना है इसका. प्रोफेज में स्पेशली आपका स्कूल एग्जाम का क्वेश्चन इज टोटली बेस्ड ऑन दिस प्रोफेज 1. माइंड दिस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रोफेज 1. लेप्टोटेनी, जाइगोटेनी, पैक्टिनी, डिप्लोटेनी, डाइकाइनेसिस. दिस इज व्हाट इज योर श्योर एंड शॉर्ट क्वेश्चन. एक क्वेश्चन आपको पीएमटी में और एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए. दिस इज द टॉपिक प्रोफेज 1. सो लेट अस सी व्हाट इज हैपनिंग इन द प्रोफेज 1. प्रोफेज में बेसिकली क्या होता था, इसमें देखो द होल प्रोफेज जैसे माइटोसिस में होता था, सेल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन विल डिसअपियर, न्यूक्लियोलस विल डिसअपियर, सेल ऑर्गेनेल्स विल डिसअपियर एंड द सेंट्रियोल्स विल बी रीचिंग द पोल्स. बिल्कुल ऐसे यहाँ पे भी होगा. इस पूरे फेज से पहले G1, S और G2 फेज हो चुके हैं. दे आर इन द अकरिंग इन द इंटरफेज टाइप ऑफ
part of the cell division after interphase. Interphase means G1, S and G2 phases. Prophase 1 is initiated. प्रोफेज 1 में सबसे पहली स्टेप लिखी थी हमने लेप्टोटीनी, थिन बैंड लाइक। इसका मतलब है, देखो सबसे इंपॉर्टेंट नाम होता है लैटिन वर्ड, जो उसका मीनिंग है, लैटिन वर्ड का मीनिंग है, वही उसका सबसे इंपॉर्टेंट फीचर होगा। तो लेप्टोटीनी का मतलब है कि क्रोमोसोम बहुत लंबे हैं, पतले हैं, दे आर थिन बैंड लाइक। हमने कैसे शुरू किया? हमने लिया है 2n इज इक्वल टू 4। इसका मतलब है हम 4 क्रोमोसोम लेके चलेंगे और ये चारों क्रोमोसोम में दो दो पेयर में, जैसे अगर मैंने कहा 2n इज इक्वल टू 4, दैट मींस देयर आर 2 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम इन अ सेल and we'll be studying meiosis in that, just for our easy this interpretation हमने इसको 2n is equal to 4 लिया है। तो लेप्टोटीनी में देखो क्या होगा। I'll start with a cell, एक सेल बनाते हैं। ओके, इस सेल में क्या हो रहा था लेप्टोटीनी में? द क्रोमोसोम, द सेंट्रियोल विल बी स्टार्टेड मूविंग अपार्ट। ये प्रोफेज के स्टार्टिंग में होता था। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन विल बी डिसअपियरिंग, इट इज डिसअपियरिंग एंड इट विल एंड, this will disappear by the time we are reaching the end of this prophase. Nucleolus is disappearing, still it has just started with, because prophase अभी initiate हुई है। और क्रोमोसोम देखो कैसे दिखते हैं। क्रोमोसोम के लिए मैं दो कलर यहाँ यूज करती हूँ, एक रेड, it is chromosome are very long, thin, band like, and their ends are attached to the nuclear membrane, very thin and long band like. So I'll be making 2 chromosomes with red color. ऐसा सपोज करेंगे कि ये 2 क्रोमोसोम आपको फादर से मिले हैं, and suppose if I draw 2 in blue color, that means these 2 you are getting from the other parent. So they're long, thin chromosome like this. तो 4 क्रोमोसोम मैंने बनाए हैं। This is representing 2n is equal to 4. Colors मैं use कर रही हूँ so that it is denoting the 2 different parents from where they have been received. तो whatever is the person जिसका मैंने सेल लिया है, उस person के पेरेंट से उसे ये क्रोमोसोम मिले हैं ऑब्वियसली, और इसमें से 2 सेट, रेड वाला जो है क्रोमोसोम दैट इज गेटिंग फ्रॉम द फादर सपोज, सो द ब्लू वाला इज गेटिंग फ्रॉम द मदर। So I have just, what I have done is I have represented it with different colors so that during meiosis when they'll be undergoing crossing over, they'll be undergoing zygote stage, so they'll be pairing. तो वो दिखाने के लिए मैंने 2 डिफरेंट कलर्स यूज करे। तो कैसे हैं देखो यहाँ पे क्या फीचर्स हुए इस पूरे लेप्टोटीनी में, यही मैं साइड में लिख देती हूँ। इसमें क्रोमोसोम्स are long, thin bands. Their tails are attached to the nuclear membrane. और क्या हो रहा है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन starts to disappear. Along with nucleolus and other cell organelles. Chromosomes start undergoing compaction.
Compaction means condensation. They'll condense further. वो छोटे होने लगेंगे. ये जो bands लंबे और बड़े हैं ये छोटे होने लग जाएंगे. That is what will happen as we approach the next phase. Next phase is called zygote. ये बहुत important है. जो मैंने diagram बनाया है वो भी और उसके साथ जो लिखा है वो भी. So this is followed by the prophase 1 का next step zygote. Done? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, let's see the next stage, zygote. ऐसे सीक्वेंस में ध्यान रखना है आपको ये. The second stage is called zygote. Zygo means pairing. Tini is the band-like. Yeah, zygonyma. Nyma is thread-like. Okay, फिर से बनाते हैं एक सेल. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अभी भी डिसअपियर हो रहा है. ये हम देखो जब तक प्रोफेज खत्म नहीं करेंगे तब तक ये बनाएंगे ऐसे ही. Centrioles are moving apart. Nucleolus is still disappearing. Chromosomes are condensing. And zygo का मतलब होता है pairing. They have started pairing. थोड़े कंडेंस हो गए हैं और पेयरिंग शुरू हो गई है. पेयरिंग किसकी होगी? एक रेड और एक ब्लू की. ये ध्यान दो. These are called the homologous chromosome. They'll come close to each other. ये 3D स्ट्रक्चर बनेगा. So in 3D, the the 4 chromatids will come closer to each other. Pairing means दोनों क्रोमेटिड जो हैं नॉन होमोलोगस क्रोमेटिड्स नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स विल पेयर. नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स पेयर. नॉन सिस्टर का मतलब है दे आर नॉट बिलोंगिंग टू द सेम क्रोमोसोम. जैसे कि this and this, they are non-sister. This and this are called sister chromatids. So दोनों chromosomes की दोनों non-sister chromatids पास आ जाएंगी. Pairing होगी उनकी. That is what this means. तो क्या हुआ? Homologous chromosomes start pairing. Pairing means coming close to each other. This is called, this process of association
of homologous chromosomes is called synapses. Synapses का मतलब ही होता है coming close to each other. याद रखोगे, there's a definition question also. ये homologous chromosomes हैं, like this one and this one, they are together called homologous. Then there are complex structures formed by a pair of synapsed chromosomes called synaptonymal complex. Again an important term, synaptonymal complex means जो synapses हो रही है उसमें कुछ points ऐसे होंगे जैसे कि ये वाला point, इसको कहेंगे हम synaptonymal complex, जहां पे ये बिल्कुल close आ जाते हैं. And the two chromosomes together is called a bivalent. The complex formed by a pair of synapsed chromosome is called bivalent. देखो कितने सारे टर्म आ गए हैं और ये सभी आपके एग्जाम की डेफिनेशन क्वेश्चन है. और टेट्राड, टेट्राड का मतलब होता है 4, बाइवेलेंट का मतलब होता है 2. 2 होमोलोगस क्रोमोसोम और 4 क्रोमैटिड्स. So these two together will be known as, ये दोनों कहलाएंगे bivalent because they are 2 together. लेकिन इनकी 4 क्रोमैटिड्स कहलाती हैं टेट्राड. So बहुत सारी नई डेफिनेशंस, नए वर्ड्स, synapses, synaptonymal complex, bivalent, tetrad. They could be asked as a simple definition question, or they may ask you to explain the zygote subphase of meiosis 1. ये थोड़ा जल्दी हो जाता है पेयरिंग एंड ऑल. इट्स अ शॉर्ट लिव्ड प्रोसेस. नेक्स्ट इज कॉल्ड द पेकाइटिनी. थोड़ा डेंसली पैक होंगे, ये ऐसे ही रहेंगे. दे विल कम मच फर्दर क्लोजर and they'll shorten. That is what will be our next step, pecaitini. Synapse का मतलब है coming close. कुछ भी दो चीज जब पास आ जाए उसको synapses बोलते हैं. जैसे दो सेल भी अगर क्लोज आ जाएं, जैसे दो न्यूरॉन भी क्लोज आ जाते हैं, I'll call it as synapses. तो synapses का मतलब है the area where the things are getting together. The point where the two things are getting together is called synapses. We are coming together of two things is called synapses. So यहाँ पे दो क्रोमोसोम बहुत पास आ गए हैं, that is synapses, and they're coming close because of some attractive force between the two, and that is how there'll be some points where there'll be कुछ एक attachment points आ जाएंगे इनमें, जिसको हम synaptonymal complex बोलेंगे. Complex means एक से ज्यादा चीज वहां आ गई है. तो दो non-sister chromatids, they'll be coming very close to each other. They'll in fact touch each other or overlap each other. This point is called synaptonymal complex. And because there are two chromosomes involved, I'll call it as bivalent. और क्योंकि 4 chromatids involved हैं, I'll call it as a tetrad.
ठीक है, बायोवेलेंट का मतलब है दो, टेट्राड का मतलब है चार। तो दो क्या है यहाँ, होमोलोगस क्रोमोसोम में दो क्रोमोसोम है, और टेट्राड मीन्स चार क्रोमैटिड्स हैं। नेक्स्ट इज द pectini. Third subphase is called pectini. Pecti means densely packed. So now these chromosomes will start condensing. थोड़े छोटे होने लगेंगे और आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स दिखाई देंगे जिसको हम कहेंगे रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अभी भी डिसअपियर हो रही है, still not disappeared finally. Centrioles, they are moving apart further. Nucleolus is still moving, going away. And but the chromosomes, they'll be condensing and will be coming very close to each other. इतना close कि they'll be as if there will be some recombination nodules formed. This overlapping of chromosomes. So एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पे वो ओवरलैप कर जाएंगे, दैट इज व्हाट वी कॉल एज द रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल। और ये दोनों क्रोमेटिड्स में, दोनों नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स में होगा। मैं आपको एक प्लेन पे दिखा रही हूँ, इसलिए मैं एक ही दिखा पा रही हूँ आपको। लाइक व्हाट आई एम एबल टू शो यू इज दिस ओनली, मैं आपको सिर्फ इतना ही दिखा पा रही हूँ, ये ऐसे वाले पॉइंट्स। Like this. So there will be overlapping of the chromosomes. क्या हुआ यहाँ पे देखिए, during this stage bivalence appear very clearly as tetrads. Tetrad means four chromatids. Non-sister chromatids form recombination nodule
at some points at which crossing over occurs. बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ये क्रॉसिंग ओवर. 12th में I'll be repeating this, repeatedly using this in genetics. क्या है क्रॉसिंग ओवर? क्रॉसिंग ओवर is the exchange of genetic material between two non-sister chromatids. Of homologous chromosomes. इस पूरे प्रोसेस में कुछ एंजाइम्स की जरूरत पड़ती है. इट इज एन एंजाइम मीडिएटेड प्रोसेस called recombinase enzyme. तो व्हाट इज रिकॉम्बिनेशन? रिकॉम्बिनेशन का मतलब है जब जेनेटिक एक्सचेंज हो जाए. देयर इज recombination of genetic material. तो ये जो पॉइंट बनाए हैं मैंने, these are the points of crossing over. This is the point where crossing over occurs. Crossing over means एक X shaped structure बन जाएगा. ये दो एक क्रोमेटिड ये वाली और एक ये ब्लू वाली. They'll be overlapping each other in such a way that this X shaped structure, ये जो बन गया, this is what we say is the chiasmata. इस पॉइंट को बोलेंगे हम chiasmata. ये यहीं पे क्रॉसिंग ओवर हो रहा है. ये and these points are called recombination nodule. इन्हीं पॉइंट्स को हम बोलते हैं recombination nodule. ये पॉइंट जहां पे हो रहा है नोड्यूल्स. इससे क्या होता है, देखो ये क्या है, क्रोमोसोम कहाँ से आ रहे हैं, किसके क्रोमोसोम है, ये समझना बहुत जरूरी है यहाँ पे कि व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. तो सपोज देयर इज अ प्लांट, सपोज देयर इज अ एक ऑर्गेनिज्म है, सपोज एक्स ऑर्गेनिज्म. इस एक्स ऑर्गेनिज्म के अंदर ये प्रोसेस सपोज मियोसिस चल रहा है, सपोज स्पर्म्स आर बीइंग फॉर्म. तो ये जिस भी मेल में ये प्रोसेस चल रहा है, उस मेल के पेरेंट्स के जो क्रोमोसोम थे जो उसे मिले थे फर्टिलाइजेशन के समय, ये क्रोमोसोम उसके पेरेंट्स के हैं. और अब ये जब नेक्स्ट जनरेशन के लिए स्पर्म बना रहा है, तो उसमें उसके पेरेंट्स के जो क्रोमोसोम के सेट्स थे, उनके अंदर इस तरह का एक मियोसिस का प्रोसेस चल रहा है, जिसमें सपोज ये उस पर्सन के मेल फादर और मदर के क्रोमोसोम्स थे दो सेट में. तो अब उन क्रोमोसोम्स में क्रॉसिंग ओवर चल रहा है. क्रॉसिंग ओवर मींस एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल. दैट मींस देयर आर फ्यू जीन्स on this chromosome and there are few genes on this chromosome. This suppose is getting from the father and this is getting from the mother. So when he's forming the sperms for the next generation, उस समय उसके फादर और मदर के क्रोमोसोम के बीच में क्रॉसिंग ओवर हो रहा है. इससे क्या होगा, इससे जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होगा. सपोज देयर आर 1 2 3 जीन्स हियर एंड देयर आर 1 2 3 जीन्स हियर. तो जो सेकंड वाली जीन है वो यहाँ से देखो शिफ्ट हो जाएगी. रेड वाला पीस यहाँ चला जाएगा और ब्लू वाला यहाँ चला जाएगा. दैट मींस वन जीन हैज बीन एक्सचेंज. अब सपोज ये नेक्स्ट जनरेशन में गया, सो दैट ऑर्गेनिज्म विल बी हैविंग मोस्ट ऑफ द कैरेक्टर्स ऑफ द फादर, बट एक कैरेक्टर उसकी ये दादा का कैरेक्टर, बट बहुत सारे कैरेक्टर उसको दादी वाले भी मिल जाएंगे. So if you are having some characters of your grandparents from the maternal side and the paternal side, this is because of the crossing over which was occurring during the gamete formation in the respective parent. It was this way. What else?
और क्या हुआ? तो ये जो रिकॉम्बिनेशन बना, इस रिकॉम्बिनेशन के प्रोसेस में देयर आर सम रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल। वो पॉइंट जहां रिकॉम्बिनेशन हो रहा है उसको बोलेंगे रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल। और ये जो क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, ये एक्स शेप स्ट्रक्चर जो बनता है जहाँ पे ये रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल बनता है ये, और यहाँ पे जो क्रॉसिंग ओवर होगा, जेनेटिक एक्सचेंज होगा, दैट इज व्हाट विल बी द प्रोसेस कॉल्ड क्रॉसिंग ओवर। और इस पूरे प्रोसेस में एक एंजाइम रिकॉम्बिनेज की जरूरत पड़ती है जो ये रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल बनाने में मदद करता है, दैट इज अट्रैक्टिंग these two things together. They come so close to each other that they overlap and form a X-shaped structure. And this is where the genetic exchange will occur. Genetic exchange is occurring in the उस पर्सन के जिसमें भी ये मियोसिस हो रहा है, उस पर्सन के पेरेंट्स के क्रोमोसोम के अंदर ये जेनेटिक एक्सचेंज हो रहा है, सो दैट नेक्स्ट जनरेशन विल बी रिसीविंग कैरेक्टर्स ऑफ द ग्रैंड पेरेंट्स, बोथ मैटरनल एंड पैटर्नल. That is why you are looking, you are having some features from your nana, some nani, दादा एंड दादी, सबके आपको कैरेक्टर्स मिल गए हैं बिकॉज दोनों पेरेंट्स के अंदर क्रॉसिंग ओवर हुआ और उनके पेरेंट्स के क्रोमोसोम्स क्रॉस ओवर हुए और कुछ जेनेटिक एक्सचेंज हुआ, एंड दैट इज हाउ यू आर गेटिंग अ कॉम्बिनेशन ऑफ, इसको जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन बोलते हैं, जिससे कि नेक्स्ट प्रोजेनी के अंदर यू विल बी गेटिंग सम रिकॉम्बिनेंट फीचर्स, कुछ कैरेक्टर दादा के, कुछ दादी के, कुछ नाना के, कुछ नानी के. Next phase is called the diploteny. Diploteny or diplonema. क्या होगा? वही फेज जो अभी तक हो चुकी है, क्रॉसओवर हो चुका है, अब वो डिसॉल्व होना शुरू होगा. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अभी भी डिसअपियर हो रही है. जब तक डाइकाइनेसिस नहीं हो जाएगा, दिस विल कीप ऑन डिसअपियरिंग. सेंट्रियोल्स दे हैव ऑलमोस्ट रीच्ड द पोल्स, दे आर मूविंग फारदेस्ट. न्यूक्लियोलस अभी भी डिसअपियर हो रहा है. chromosomes are small, they have condensed, and they are now separating out. Like this. So अब ये एक दूसरे से दूर जा रहे हैं. This and this will separate. This will separate and this will separate. तो क्या होगा? Suppose this was one of the chromosome. So this will now try to separate from the other, except for that point. सिर्फ इस पॉइंट पे जो ये एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर दिख रहा है, इस पॉइंट को अगर हम छोड़ दें तो बाकी सभी जगह से वो सेपरेट हो चुके हैं. This is moving this way and this is moving this way. This X-shaped structure is called chiasmator. This point is called chiasmator. तो क्या हुआ यहाँ पे? There is dissolution of, exchange हो चुका है, अब ये they'll separate out. The synaptonymal complex. Recombined chromosomes. The bivalents separate from each other, except for
sites of crossover. इससे क्या होगा, ये एक्स शेप स्ट्रक्चर दिखेगा. These X shaped structures now seen, now observed, are called chiasmata. बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, अगेन डेफिनेशन क्वेश्चन है ये. Now this diploteny stage will be lasting for years in the oocytes of vertebrates. In oocytes means egg cells of vertebrates. Diploteny lasts for months or years. याद करो, ये मैंने आपको पहले भी बताया था सेल वाले चैप्टर में. देयर विल बी लैंप ब्रश क्रोमोसोम्स. तो वो जो मैं वहां पे डिस्कस कर रही थी कि कुछ वर्टिब्रेट्स के एग सेल्स में ऐसा दिखाई देता है, तो वहां पे मैंने एक वर्ड यूज किया था, डिप्लोटिनी. तो ये होमोलोगस क्रोमोसोम है जो ऐसे रिकम्बाइन करके सेपरेट होने की कोशिश कर रहे हैं, बट अभी भी वो सेपरेट नहीं हुए हैं एक्सेप्ट फॉर दोस पॉइंट्स जहां पे कि रिकॉम्बिनेशन मॉड्यूल बना था, वहां पे अभी भी अटैच्ड है. एंड बिकॉज दे आर मूविंग फर्दर एक्सेप्ट फॉर दोस पॉइंट्स, so these points will be seen as X-shaped structure, and that is what is called the chiasmata. Otherwise they are separated. वो दूर जा रहे हैं, अभी वो attached हैं but उन points पे सिर्फ attached हैं. So that is what is we call as diploteny. Now PMT में question कैसे होगा? Chiasmata is seen in which subphase of meiosis? तो आपको क्या बताना है? आपको बताना है it is in the diploteny of meiosis 1, prophase 1. ऐसे ये बहुत स्पेसिफिक है कि इसी स्टेज पे आपको ये दिखाई देगा. और अगर मुझे मियोसिस स्टडी करनी है तो कहाँ देख रहे हैं हम एंथर्स में पोलन जहां बन रहे होते हैं वहां देखेंगे, या किसी इंसेक्ट की टेस्टीज का सेक्शन निकालेंगे, वहां देख सकते हैं मियोसिस होते हुए. द लास्ट सब फेज प्रोफेज की कहलाती है डायकाइनेसिस. दैट इज द एंड ऑफ दिस प्रोफेज. और अब तक ये बिल्कुल दूर जा चुके हैं क्रोमोसोम, बट अभी भी काइस्मेटा दिखाई देगी या उस पॉइंट पे जुड़े रहेंगे. और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो चुकी होगी, पोल्स पे सेंट्रियोल पहुंच चुके होंगे. दैट इज द लास्ट फेज. सो लेट्स सी द नेक्स्ट फेज. डायाकाइनेसिस. सो दिस इज द लास्ट फेज. मैं इसको फिर से डायग्राम बनाती हूँ. So the centrioles have reached the poles. Nuclear membrane has disappeared. प्रोफेज के एंड में एस्ट्रल रेज आ जाती हैं, वो आ चुकी हैं. और क्रोमाटिड्स आ चुके हैं. क्रोमाटिन क्या, this spindle fibers, they are appearing from the cytoplasm. And chromosomes का देखें क्या है सिचुएशन. homologous chromosomes अभी भी आपको दिखाई देंगे, and they'll be as they were there in the last phase. They'll be still attached at some points, जिसको हमने क्रॉसओवर कहा था, उस पॉइंट पे अभी भी अटैच्ड होंगे. सो ये स्पिंडल फाइबर्स हैं. Like this. So there will be spindle fibers appearing. This comes from cytoplasm. Mind this, ये cytoplasm में dissolved tubules से जो आ रहे हैं, ये भी क्वेश्चन आता है पीएमटी में. These are the homologous chromosomes. अभी भी अटैच रहेंगे.
centrioles, and they are giving out the astral rays, and we were calling this as the whole thing is called the spindle apparatus. But the chromosomes, homologous chromosomes, they are still attached. तो क्या हुआ यहाँ पे देखें, there is terminalization of chiasmata, but chromosomes still remain attached. At certain points. Of recombination. Chromosomes are fully condensed. Condense means बिल्कुल small हो चुके हैं, वो छोटे हो चुके हैं. Meiotic spindles appear. Assembled to prepare the chromosomes for separation. Nuclear membrane and nucleolus disappear. And इसके बाद आएगा मेटाफेज 1. So ये हुआ हमारा प्रोफेज 1. तो यहाँ पे क्या हुआ, व्हाट इज द बेसिक पॉइंट जो एग्जामिनर आपसे पूछता है, दैट विल बी दिस टर्मिनलाइजेशन ऑफ chiasmata. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट. तो ऐसे सभी सब फेजेस में से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको ध्यान रखने. नाउ ये हो चुका है. अब मेटाफेज में क्या होता था, मेटाफेज में द क्रोमोसोम्स विल अलाइन इन द सेंटर विद द स्पिंडल्स अटैच्ड एट द काइनेटोकोर. वो सब सेम होगा, बट वो देखेंगे हम कल देखते हैं. टुमारो आई विल फिनिश द चैप्टर. इसको खत्म कर देंगे. इसको आज पढ़ लेना वापस से, एंड इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम जस्ट टेल मी. कल ही पूछ लेना, अदरवाइज फिर ये 2 दिन के बाद बोलोगे कि मुझे समझ में नहीं आया, 3 दिन के बाद बोलोगे चैप्टर रिपीट करो. आई विल नॉट. सो जस्ट गो थ्रू दिस टुडे इटसेल्फ एंड टेल मी क्या प्रॉब्लम है, एंड प्रिपेयर फॉर द टेस्ट आल्सो. टेस्ट विल बी फ्रॉम द, कहाँ से बोला था टेस्ट मैंने? मैम सेल चैप्टर से ही बोला था आपने. ओके, चलो. तो प्रिपेयर दैट आल्सो एंड आई मे टेक योर क्लास आल्सो. अगर कल चैप्टर खत्म नहीं हुआ तो मैं फिर क्लास भी लूंगी सैटरडे को, नहीं तो आई विल गिव यू द टेस्ट. दैट विल बी पीएमटी टेस्ट. यस मैम. ओके, थैंक यू मैम. ओके देन बच्चों. Thank you.